यहाँ पर एम है हम लोगों का कि कैसे लो रेजिस्टेंस को हम निकालेंगे। तो लो रेजिस्टेंस को निकालने का तरीका क्या है ये, तो इसके लिए हम लोग मीटर ब्रिज का प्रयोग करेंगे। अब मीटर ब्रिज क्या होता है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए, मीटर ब्रिज वास्तव में इसका बनावट क्या होता है कि एक ये पूरा का पूरा सेट एक आयताकार लकड़ी का तख्ता होता है, उस पर ये जो है मेटल का स्ट्रिप है। ये देखिए, ये मेटल का स्ट्रिप है, ये मेटल का स्ट्रिप है, ये मेटल का स्ट्रिप है। तो ये हो सकता है ये कॉपर का बना हो या पीतल का बना हो। ठीक है, अब ये गैल्वेनोमीटर है जो कि इससे जोड़ा गया है। दूसरी चीज़, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है और ये जिस वायर का हमको रेजिस्टेंस निकालना हुआ है। अब इस मीटर ब्रिज पर ये स्केल होता है, देखिए ये स्केल है, ये स्केल है और स्केल के समानांतर ये जो ए से बी यहाँ एक तार लगी रहती है। ये तार की मोटाई होमोजेनियस होता है, इसमें यह होमोजेनियस रूप से इसका लेंथ ये सब बना रहता है। हर तरह से मोटाई होमोजेनियस होता है। और ये एक कुंजी, ये मतलब सर्किट डायग्राम पूरा बना हुआ है। और मीटर ब्रिज मात्र इतना ही है, ये इतना ही मीटर ब्रिज है। इसमें तार पर खिसकने वाली एक जॉकी लगा रहता है। तो पार्ट वाइज पार्ट हम लोग इसको देखेंगे कि किस तरह से ये बना होता है और कनेक्शन कैसे होता है। जॉकी, लेक्लांशे सेल, रेजिस्टेंस बॉक्स, galvanometer, key, connecting wires, wire cutter, scale, resistance wire and sandpaper. यहाँ देखिए, हम लोग को जो है यही मीटर ब्रिज है, ये मीटर ब्रिज है। ठीक है, और ये हुआ जॉकी, फिर ये हुआ सेल, लेक्लांशे सेल, ये हुआ रेजिस्टेंस बॉक्स जो यहाँ पर जुड़ते हैं, ये हुआ कनेक्टिंग वायर और इसी वायर का छोटा सा टुकड़ा लेकर के हम लोग इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। ये इसमें बहुत सा वायर लपेटा गया है। ये हुआ की जिसको हम बाद में जोड़ेंगे। ये गैल्वेनोमीटर है जो धारा का अमाउंट और धारा की दिशा दोनों बताता है। यहाँ पर ये कटर है। तो ये क्या क्या ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड होता है और मीटर ब्रिज क्या है ये हम लोग जान गए हैं। First, make the connections as shown in the circuit diagram. Take a connecting wire and cut it using a wire cutter.
Connect one end of the wire to the positive terminal of the Leclanché cell and the other end to terminal A of the meter bridge. Now take another connecting wire and connect it between the negative terminal of the Leclanché cell and one end of the key. The other end of the key is connected to the terminal B of the meter bridge with another connecting wire. Introduce the resistance box in the gap G1 of the meter bridge. Now, take the resistance wire and connect it in the gap G2 of the meter bridge. Since the resistance of the wire depends on its length, make sure that both ends of the resistance wire just touch on the gap. With other connecting wires, connect the positive terminal of the galvanometer to the central terminal of the meter bridge and negative terminal of the galvanometer to the jockey. Now insert the key and press the jockey near A and then near B. If the galvanometer deflections are in opposite directions, then the connections are correct. Now, press the jockey almost at the middle of the wire on the meter and introduce a suitable resistance R in the resistance box so that the galvanometer shows zero deflection. Measure the distance L1 from the terminal A to the balancing point. Now, interchange the position of the resistance wire and resistance box in gaps G1 and G2. Measure the distance L2 from the terminal B to the balancing point. Then calculate the mean balancing length L. Then calculate unknown resistance using the equation X is equal to L whole divided by 100 minus L into R. Repeat the experiment for different values of R and mean value of the resistance X gives the resistance of the wire. Measure the radius R of the wire using a screw gauge. If L be the length of the wire, then the specific resistance of the material of the wire is calculated. इस प्रकार से हम लोग प्रोसीड्योर तो देख चुके हैं। अब बारी बारी से ये कैसे लिखा जाएगा इसको भी हम लोग ध्यान देंगे। वास्तव में क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ इज व्हीटस्टोन ब्रिज एंड एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज मीटर ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज इज मीटर ब्रिज। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन होता है, जो हम लोग दिखा चुके हैं। ये दिया जा रहा है कि आप लोग पॉज करके इसको उतार लेंगे कि ये ताकि नोटबुक बन सके। इसका हम लोग दिखा चुके हैं कि कैसा होता मीटर ब्रिज और उसी का यहाँ पर वर्णन दिया गया है। प्रोसीड्योर भी बताया जा चुका है, तो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर प्रोसीड्योर भी दे रहे हैं। 1 नंबर है, फिर 2 नंबर है, फिर ये आगे बढ़ता चला जाएगा प्रोसीड्योर। देखिए यहाँ पर फिर 3 नंबर है, ये सब प्रोसीड्योर लिखा हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं ये 4 नंबर है, इसको उतार लेंगे आप। यहाँ ये 5 नंबर है, 6 नंबर, ये सब प्रोसीड्योर है। फिर यहाँ 7 नंबर है प्रोसीड्योर। इस तरह से नोटबुक में वीडियो को पॉज करके और उतारते चले जाइएगा तो नोटबुक भी तैयार हो जाएगा और आपका प्रैक्टिकल भी साथ ही साथ तैयार होते चला जा रहा है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे अननोन रेजिस्टेंस को हम लोग
निकालेंगे। केवल लंबाई को जान करके कि लंबाई कितना, तार की लंबाई के आधार पर, और यहाँ उस बॉक्स में जो रेजिस्टेंस था उस बॉक्स के आधार पर रेजिस्टेंस का मान रखते हैं और तार की लंबाई के आधार पर हम लोग निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस। इस प्रकार से मीटर ब्रिज का एप्लीकेशन भी हम लोग देख चुके हैं, उसका प्रयोग भी देख चुके हैं, और इसे पूर्णतः कॉपी में हम लोग तैयार करके लिख लेंगे। यही हम लोगों का जो है मीटर ब्रिज का प्रयोग पूर्ण हुआ।